जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी मैनू आग्ञा दो कि मैं सत्संग शेयर कर सकां। मैं तो ਉਹੀ बुलवाना जो ਤੁਸੀਂ बुलवाना चाहते हो गुरु महाराज जी। शुक्राना 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 गुरु महाराज जी। जय गुरु जी। गुरु महाराज जी ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾਈ ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਪਲ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਕੱਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਲਾਈਨ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੌਰੀ ਲਾਈਨ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਲਾਈਨ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੜਕ ਦੇ ਨੇ ਮਾਰੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਘਰ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 90% ਤਾਂ ਕਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ 10% ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਹੀ 10% ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ। ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਗਲ ਬੱਚੇ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੋਚੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। पूरे परिवार ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ਓਮ ਨਮः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ਓਮ ਨਮः शिव जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, नजारा लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू लॉट। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु पिता, आपका शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने मुझे आज ये शुक्राना सत्संग करने की सेवा का मौका दिया। आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो प्लीज गुरु जी, प्लीज संगत जी मुझे माफ करना। संगत जी, मुझे शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करना नहीं आता। गुरु जी मुझे टेलीपैथी के थ्रू बहुत बार बोल रहे थे कि बेटा शुक्राना सत्संग कर ले, और आज मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, सबसे पहले हमारे घर में गुरुजी ने मेरी मम्मा को अपने साथ जोड़ा था। उसके बाद धीरे-धीरे पिछले साल 2024 के एंड में गुरुपा ने मुझे अपने साथ जोड़ा था। मुझे स्पेसिफिक डेट याद तो नहीं है, बट हाँ, मुझे इतना ज़रूर याद है कि 2025 चलने वाला था उस टाइम पे। आई थिंक दिसंबर में मुझे गुरुपा ने अपने साथ जोड़ा था। गुरुजी, आप हमेशा मेरे अंग संग रहते हो। जब भी मुझे कोई डर सताए या बुरा लगे, तो गुरुजी आप मुझे कभी बटरफ्लाइज या फिर व्हाइट पिजन के रूप में दर्शन देते हो। संगत जी, गुरुजी का जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। मुझे कब से गुरुपा, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे कब से गुरुजी टेलीपैथी के थ्रू बोल रहे थे कि बेटा शुक्राना सत्संग कर, और आज 12 अक्टूबर को मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। संगत जी, अभी मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरुपा ने मुझे जितने भी कष्ट थे उन सब के बारे में गुरुपा मुझे खुद पहले बता देते थे कि बेटा तेरे ऊपर ये कष्ट आने वाला है, ये उपाय कर, या फिर तू ये सत्संग सुन और तेरा कल्याण होगा। गुरुपा ने मुझे जितने भी मतलब जितने भी मेरे कष्ट थे ना, वो सब गुरुपा ने काट दिए। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपिता। संगत जी, गुरु जी की महिमा अपरंपार है। सिर्फ बात ये है कि आपको कितना भरोसा है अपने गुरुपा पे, कितना भरोसा, कितना अटूट विश्वास है आपको अपने गुरुपा पे। गुरु जी, आप मुझे क्षमा करना कि अगर मुझसे कोई भूल हो, क्योंकि ये मेरा पहला सत्संग है जैसे मैंने आपको बताया था। तो गुरुपा, आप प्लीज हमेशा मेरे अंग संग रहना, हमेशा मुझे बुरी चीज़ों से बचाना, और मेरी सद्बुद्धि मुझे सद्बुद्धि देना, और मैं अच्छे कर्म करूं, ना मैं किसी का बुरा सोचूं, ना मैं किसी का बुरा बोलूं, ना मैं किसी के बारे में कभी भी बुरा ना सोचूं। लास्ट में संगत जी, मैं कुछ पंक्तियों के द्वारा गुरु जी को अ, धन्यवाद देना चाहती हूँ। एक तरीके से मैं ये पंक्तियां गुरु जी को अर्पण करना चाहती हूँ। मैंने किसी शुक्राना सत्संग में ही सुना था कि बेसिकली एक गाना है जिसकी कुछ पंक्तियां मैं अभी गुरु जी के चरणों में समर्पण करना चाहती हूँ। जो मैंने सुना था किसी शुक्राना सत्संग में कि गुरुपा का फेवरेट सॉन्ग है। मुझे नहीं पता है या नहीं, बट मेरे मन के भाव, मैं ये पंक्तियां गुरु जी के लिए बस उनके लिए बोलना चाहती हूँ। तो ये पंक्तियां कुछ इस तरीके से है। जग जाग ले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार,
बाहें गले में डाल कर हम रोले जार जार, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो ये पंक्तियां मेरे मन के भाव मैंने गुरुजी के लिए गुरुपा के चरणों में समर्पण किए। आपका शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा, थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच, थैंक यू गुरुपा, हर एक चीज के लिए आपका शुक्राना। आंटी जी, आपने मेरा शुक्राना शेयर करा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और मेरा नाम सिमरन है। मैं अपना शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। संगत जी, गुरुजी की जितनी बड़ाइयाँ की जाए उतनी कम है संगत जी। हम हर संगत जानते हैं कि गुरुजी ने हमारे लिए क्या किया है, क्या नहीं किया। और मैं गुरुजी का शुक्राना अमृत संध्या वेला कर रही हूँ। गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि पुत्र संध्या वेले शुक्राना कर और तेरी जितनी भी परेशानी वो ख़त्म हो जाएंगी अगर संध्या वेले तो शुक्राना करेगी। तो आज मैं शुक्राना कर रही हूँ। आज सोमवार है और अष्टमी भी, छठ पूजा भी है आज। और मैं मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता ही, मैंने पहले भी अपने उसे बताया है सत्संग में कि मैं जॉब करती हूँ फील्ड का। तो संगत जी, आज क्या हुआ कि मैं फिर मतलब कि कैंप हमारा लग रहा था, तो कैंप से हम लोग घर पे आ रही थी जैसे, तो मानोगे नहीं संगत जी, जैसे मैं रोड क्रॉस कर रही थी तो एकदम ऑटो वाला मेरे पास से गुजरा संगत जी। एक मिनट का भी हम दोनों में वो नहीं था, वो मुझे टक्कर मार के जा सकता था। गुरु महाराज ने मुझे बचा लिया, पीछे मुझे खींच लिया, और नहीं तो आज मेरा एक्सीडेंट हो सकता था। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि उन्होंने मुझे आज नई लाइफ ब्लेस करी। और संगत जी, गुरु जी ने मुझे वो खुशियाँ दी हैं जिसकी मैं उम्मीद नहीं कभी करी। संगत जी, मैं जिस जॉब में काम करती हूँ, जिसकी जॉब करती हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ जॉब से। पर कि इसमें ना काम ज़्यादा है और पैसा कम है, और मेरे बस की नहीं हो रहा भाग दौड़। तो मैं सोची थी गुरु जी से कि मैं गुरु जी, मेरे बस की काम मेरे एज के अकॉर्डिंग नहीं है, काम मैं नहीं कर सकती। तो संगत जी सूजी गिरी होगी, सॉरी। तो संगत जी, सॉरी संगत जी, बीच में बेटी कुछ बोल पड़ी थी। तो संगत जी, फिर मुझे गुरु महाराज ने आज सोमवार है, आज मुझे मैसेज व्हाट्सएप पे मिला कि आपको अगर जॉब करनी है तो यहाँ पर जॉब है, और इतनी सैलरी है संगत जी। जहाँ मुझे 9,000 मिल रही है वहाँ मुझे ज़्यादा सैलरी मिल रही है। तो मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, मेरे मालिक का। वो मेरी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, और मुझे जहाँ पे सैलरी मिल रही है उससे ज़्यादा सैलरी मुझे के लिए जॉब आई है संगत जी। तो शुक्राना मेरे मालिक का कि गुरु महाराज ने मुझे एक नई जॉब ब्लेस करी है। तो संगत जी, इसमें ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, और एज के अकॉर्डिंग से ही काम है। और संगत जी, मेरे गुरु जी मेरी हर खुशी का ध्यान रखते हैं, पर मैं भटक जाती हूँ और बहुत भटकती हूँ मैं संगत जी। मैं देखिए, परमात्मा जो है वो हमारे साथ है, और जिसकी हम लोग फिर भी हम लोग अनजान बनते हैं और गलत कर्म करते हैं, और
विश्वास नहीं करते हैं, तो इस कारण हम लोग मार खाते हैं। संगत जी मैं जो मार खा रही हूँ ना, इस कारण मैं मार खा रही हूँ कि मैं गुरु जी पे विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। तो संगत जी इस कारण मैं अभी तक परेशान और दुखी रहती हूँ। संगत जी मेरा पति के साथ भी झगड़ा होता है, और मेरे गुरुजी ने मेरे पति को काफ़ी सुधार दिया है। जो इंसान अपने मम्मी पापा को बहुत चाहते हैं वो, और उनकी सेवा पानी में लगे रहते हैं, जो उन्होंने कह दिया। संगत जी मैं उनके सामने कुछ नहीं हूँ, पर मैं सोचती हूँ ठीक है जैसा भी है। पहले देखिए माँ बाप ही होती हैं बच्चे के लिए, चाहे वो शादी करके आ जाए तो वो अपने माँ बाप के प्रति जो फ़र्ज़ निभाती हैं तो हमें निभाना चाहिए। पर मैं ये कहती हूँ कि अगर आप लोग अपने माँ बाप के प्रति अपना फ़र्ज़ निभाते हो तो अपने पति के प्रति भी फ़र्ज़ निभाना चाहिए, क्योंकि वो अपना घर छोड़ कर आती है। संगत जी मैं उन संगत को बोलूँगी, जेंट्स जिन्हें मेरे लिए खासकर हैं, कि उनको अपनी पत्नियों को दर्जा देना चाहिए। जिस प्रकार अगर आप अपने माँ बाप को प्यार करते हो, वो अपने माँ बाप को प्यार करती है, छोड़ कर आती है अपने माँ बाप को सिर्फ आपके कारण। और उनको अपनी पत्नी का कदर करनी चाहिए, उनको मान सम्मान देना चाहिए। और जहाँ पत्नी का मान सम्मान होता है, गुरुजी कहते हैं कि वहाँ पे लक्ष्मी का वास होता है। जहाँ पे हर वक्त मतलब की पत्नी को धिक्कारा जाता है और उसको नीचा दिखाया जाता है, तो वहाँ लक्ष्मी नहीं आती। तो संगरी इस कारण मेरे पति का काम भी नहीं चल रहा, क्योंकि वो हर वक्त मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं मुझे। पर अब तो काफ़ी कम कर दिया उन्होंने मुझे उल्टा सीधा बोलना, और बल्कि मैं ही बोलती हूँ, और वो सहन करते हैं बहुत। मैंने भी बहुत सहन किया संगत जी, सारी ज़िंदगी सहन किया मैंने। पर गुरुजी ने काफ़ी दिन से मैसेज आ रहा था मेरे पास कि पता तेरे घर में बहुत बड़ा बवाल हो सकता है, तुम दोनों पति पत्नी को समझना पड़ेगा और समझदारी से काम करना पड़ेगा। तो संगत जी क्या हुआ था कि अभी संडे को मेरी छुट्टी थी, तो मैं जब घर में रहती हूँ ना, तो मेरा दिमाग फालतू की बातों में घूमता है। क्या हुआ संगत जी, आपको मैंने पहले भी सत्संग बनाया था। हमारी ऊपर किराए पे की लेडीज़ रहती है, जिसका मेरे हस्बैंड से बातचीत रहती है, और वो हर वक्त मेरे पति को फ़ोन करके बुलाती है बाहर। और मतलब कि जब कोई बात हुई थी जैसे, तो उसने मतलब मुझे झूठा साबित कर दिया और यहाँ पे रो के दिखा दिया मेरे सास ससुर के सामने। तो मेरे सास ससुर उसको पूछते हैं, बल्कि मुझे नहीं पूछते, मुझसे बात नहीं करते, और उससे बात करते हैं संगत जी। तो इस कारण वो लेडीज़ बहुत ज़्यादा ही सर पे चढ़ गई है, और उल्टा सीधा बोलती है। मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोलती कि मेरे पति ने मुझसे पैसा ले रखा है संगत जी, क्योंकि इंसान दब जाता है जब किसी से उधार लेता है। अब जिसमें से वो किराएदार नहीं है और हमने उससे पैसा लिया है, तो किराए मकान मालिक तो फिर दब जाता है ना, बोल नहीं सकता। तो संगत जी इसलिए मैं कारण मैं उस लेडीज़ को कुछ नहीं बोलती हूँ। गुस्सा तो मुझे बहुत आता है, मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ संगत जी, पर मैं शांत रहती हूँ। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि पुत्र जो तुझे बोल रहे हैं, जो तुझे साथ बुरा कर रही हैं, आज उनका दिन है, कल को तेरा भी समय आएगा, और वो मैं सबक सिखाऊंगा मैं उन सबको। तो संगत जी फिर मेरा उस दिन संगत जी बवाल हो सकता था मेरा। मेरे हस्बैंड बोलने लगे मैं तो तलाक लूँगा, और मैं वकील करने जा रहा हूँ, ये है वो है, यूँ बोलने लग गए। तो संगत जी फिर मैंने कहा ठीक है, हम लेकर आइए, जो करना कर कीजिए, मैं भी नहीं रह सकती आपके साथ ऐसे, क्योंकि मैं टेंशन लेकर ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। पर बच्चों को देखती हूँ संगत जी, फिर मुझे गुरु महाराज ने मुझे इतनी शांति प्रदान करी, मैं इतनी शांत हो गई, मुझे लगा नहीं था कि कुछ हुआ था संगत जी। फिर उसके बाद रात को मेरे हस्बैंड रात को लेट आए 11 बजे तक, और संगत जी वो भी मुझे कुछ नहीं बोले और खाना खा के सो गए। तो संगत जी गुरु महाराज ने उस बवाल को रोका, नहीं तो बहुत बड़ा बवाल हो सकता था मेरे साथ। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि उन्होंने उसको शांत कर दिया। संगत जी इससे पहले भी मेरे पति के साथ झगड़ा होने वाला था, तो गुरुजी ने उसको भी रोका। और मेरे मेरे ऐसे ही बोला था गुरुजी, ऐसे मन मन में मेरे आ रहा था कि गुरुजी मतलब कि आप सब कुछ जानते हो कि ये होने वाला है, फिर भी मेरे पति के साथ झगड़ा होता है, सब कुछ होता है, ऐसा क्यों होता है गुरुजी, आप क्यों नहीं रोकते? तो संगत जी फिर उस दिन गुरुजी महाराज ने रोक दिया। मतलब कलेश हो सकता था मेरे हस्बैंड के साथ बहुत तगड़े वाला, पर गुरुजी की कृपा से वो वहीं शांत हो गया और कुछ नहीं हुआ संगत जी। पर संगत जी मेरे ससुराल वाले कोशिश करते रहते हैं मेरे पति का कान भरते, मेरी नंद, मेरी सास। तो संगत जी इस कारण मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। तो मैं सोचती हूँ शायद मेरे कर्म ऐसे हैं जो मुझे भोगने हैं, तो मैं अपने कर्म भोगती हूँ संगत जी।
पर गुरु जी से कहती हूँ, गुरु जी आप मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं भोग सकूँ। संगत जी मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है, आप मानो मैं रो पड़ी थी। मेरे शरीर ऐसा हो गया था जैसे मेरे शरीर में बिल्कुल ही कुछ है ही नहीं, ताकत ही नहीं है बिल्कुल। मैं रो पड़ी थी, मैं बस की नहीं गुरु जी जॉब करना, मैं नहीं करूँगी जॉब। पर गुरु जी कह रहे कि पुत्र तुझे करना ही पड़ेगा, तेरे जीवन में बहुत संघर्ष हैं और तुझे करना ही पड़ेगा। तो मैंने पर्ची डाली थी गुरु जी के सामने, तो गुरु जी ने बोला कि जॉब आपको करनी है। तो संगत जी फिर मैंने स्टार्ट करी है जॉब करनी, और क्योंकि मेरे पति के बस की नहीं है जॉब करना, उन्होंने सारे बैठ के ही काम किया है और जॉब बाहर करनी ही गए हैं करने के लिए। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि इन्होंने मुझे जॉब लेस करी है संगत जी। तो संगत जी मैं फिर संगत जी गुरु जी का कब से मैसेज आ रहा था कि पुत्र तेरे बेटे पर अकाल मृत्यु का डर है और यमराज को लेने आ रहा है। ऐसे ऐसे मतलब कि सत्संग आ रहे थे, तो मैंने सत्संग सुना। तो कह रहे सत्संग सुन कष्ट कटवा, तो मैंने सत्संग सुना और कष्ट कटवा मतलब कि हुए संगत जी। और मेरा बेटा ठीक ठाक अपनी नानी के घर गया था, तो वहाँ से आ गया। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि वो मेरी नानी के घर से ठीक ठाक आ गया, वरना मुझे तो टेंशन हो रही थी संगत जी कि पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं, पर वो ठीक ठाक गुरु महाराज जी के कृपा से आ गया संगत जी। मुझे हमारी जो किराएदारनी है वो भी मुझे उससे बहुत परेशान हूँ, और गुरु जी ये कह रहे कि पुत्र वो भी यहाँ से चली जाएगी किराए यहाँ से छोड़कर, चिंता ना कर, पर थोड़े दिनों और रुक जा, सब्र कर, वो जरूर जाएगी यहाँ से। मैंने गुरु से अरदास लगाई थी, गुरु जी उसको यहाँ से निकालिए, वो यहाँ से चली जाए। मैं आपको मैं सिमरन कर पा रही हूँ, ना जाप कर पा रही हूँ, ना ढंग से पूजा कर पा रही हूँ। उसके चक्कर में 24 घंटे में उसको ही देखती रहती हूँ कि मेरे पति के साथ क्या कर रही है, कहीं जा तो नहीं रही है, ऐसे ही मतलब कि रहता है मेरे दिमाग में। तो संगत इसके अकॉर्डिंग गुरु जी ने सत्संग में सुनाया था कि ये तो अपना घर बर्बाद कर रही है शक करके। तो संगत जी ऐसे ही एक मतलब कि जेंट्स था, वो अपनी लवर पे शक करता था, और कहीं भी वो जाती थी हर 24 घंटे फ़ोन मारता रहता था। वो कहती थी आप 24 घंटे मुझे फ़ोन मारते हो, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, मुझे काम भी करना होता है ऑफिस में वगैरह में, और मैं फ़ोन उठाती तो आप नाराज़ हो जाते हो। तो फिर वो उसको छोड़ देती है। फिर संगत जी परेशान होकर जब वो उसके माँ बाप उसकी शादी करते हैं, तो वो अपनी पत्नी के साथ भी ऐसे ही बिहेव करता है, तो वो भी छोड़ देती है उसको। फिर संगत जी मतलब कि गुरु जी यही कह रहे थे, मुझे ये समझा रहे थे कि पुत्र कि विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है, अपने पति पे विश्वास रख, वो ऐसा नहीं है जैसा तू सोचती है उसके बारे में। तो मुझे इसी यही सत्संग इसलिए मुझे सुनाया था गुरु जी ने कि विश्वास कर अपने पति पे, तो पति है चंगा है और कोई बुरा आदमी नहीं है, ऐसा सब बोलते हैं गुरु जी। पर जब मैं उनकी हरकतें देखती हूँ ना, तो मुझे और फिर गुस्सा आता है संगत जी। संगत सबसे बड़ी बात ये होती है पत्नी के लिए, अगर पति उससे ढंग से बात करे, उसे अपनी बातें बताए, अपनी बात शेयर करे, तो पत्नी क्यों विश्वास नहीं करेगी अपने पति के ऊपर। जब पति अपनी पत्नी से बात नहीं करता, उसके साथ 2 मिनट बैठता नहीं है, कुछ नहीं करता, फिर पत्नी क्या करेगी। तो उसके दिमाग में शक तो घूमेगा ही ना संगत जी। तो मेरे पति मेरे साथ ऐसे ही करते हैं, ना मेरे से बात करती हैं ना कुछ करते हैं, तो इसलिए मेरा दिमाग घूमता है कि हाँ ज़रूर कुछ ना कुछ हो ही होगी इनकी बाहर, जिसके कारण ये मुझसे ढंग से बात नहीं करते। तो बस मैंने मालिक पे छोड़ दिया सब कुछ, गुरु महाराज को ही संभालना है, मेरे पति को सम्मति देनी है कि वो सदकर्म करे और किसी भी लेडीज़ के चक्कर में ना पड़े। तो मैं संगत जी मेरा सत्संग बड़ा हो रहा है, फिर अपलोड होना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मैं अपना ही विराम करती हूँ सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। शुक्राना शेयर करूंगी, उसके पहले दिव्य मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। हे गुरु जी, आपके चरणों में नतमस्तक हूँ। आपकी कृपा, आपकी अनंत कृपा और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद 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 है बाबा। आपने मुझे ज्ञान का प्रकाश दिया, मुझे सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। मैं आपकी इस कृपा को कभी नहीं भूलूंगी और आपका शुक्राना शुक्राना करती रहूंगी। गुरु जी, मेरे जीवन के आधार आप हो, मेरे परिवार की नींव आप हो, मेरे परिवार के पालनहार हो। आप तो पूरे विश्व के पालनहार हो और हर पल हर क्षण हमारे अंग संग हो। इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है बाबा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। गुरु जी, आपका आशीर्वाद है। आंटी आंटी आज की रात मुश्किलों से भरी होगी। कल का सवेरा तेरे और तेरे परिवार के लिए राजयोग लेके आएगा। तूने काफी संघर्ष कर लिया, अब तेरी मौज होगी। तुरंत एक शुक्राना कर, तो इसे और भक्तों के साथ शेयर कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपका अनंत कोटि शुक्राना है बाबा। शुक्राना शुक्राना है इस आशीर्वाद के लिए, हर पल अंग संग रहने के लिए, हर पल हमारी केयर करने के लिए बाबा। आपका हमेशा शुक्राना शुक्राना है। आपकी इस कृपा को कभी नहीं भूल सकती। हमेशा आपकी हमेशा आभारी और शुक्रगुजार हूँ, पल पल शुक्रगुजार हूँ बाबा। हे परमात्मा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने मुझे जीवन दिया, मुझे सांसें दी, मुझे सब कुछ दिया। मैं इस कृपा को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ बाबा। आपकी असीम कृपा मुझ पे बरसाई है, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और मैं कभी ये नहीं भूलूंगी, ना भूल सकती हूँ कभी। मैं आपकी हरदम हमेशा आपकी आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपने इस बच्ची पे बहुत रहमतें की है, इसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना है बाबा। हे परमात्मा, मैं सदा आपकी स्तुति पाठ सत्संग, आपका सिमरन शुक्राना और हर पल आपकी भक्ति में ही मेरा समय बीते और समय गुजारूं। यही अरदास है आपके चरणों में। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी संगत परिवार के भी साथ में आप पल पल सबका कल्याण करते हो, सबका बच्चों को ध्यान रखते हो। पूरे परिवार का एक बंदा जुड़ जाता है तो उसका सारा परिवार छोटे से बड़ा सब आपके ध्यान में होता है और आप सबको संभालते हो, किसी पे आँच नहीं आने देते हो। इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है बाबा। हम तो आराम भी कर लेते हैं, आप तो रात दिन हमारा कल्याण के लिए, सभी जीव जंतु से लेके सभी के कल्याण के लिए आप रात दिन कल्याण ही कल्याण करते हो। इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है प्रभु। कौन से शब्दों में धन्यवाद करूं। पूरे ब्रह्मांड के मालिक, दया के महासागर हो, आप करुणा निधान हो। पल पल
पर फल गुरु जी नाल मैं क्यों घबरावा। आप हमेशा साथ में हो, मैं न डरती हूँ न घबराती हूँ बाबा। बहुत घबराई, बहुत डरी, लेकिन आपने मुझे उसमें से बाहर निकाल के हिम्मत दी और अभी मैं उसमें से बहुत बाहर निकली। इसके लिए भी आपका शुक्राना। गुरु जी, पलटी मार के आपके सामने बैठने का मेरा नहीं हो रहा था। आप देख रहे हो, आपके सामने रोज अमृत वेला में बैठती हूँ, नीचे ही जमीन पे ही आपके सामने बैठी हूँ। वो नहीं हो रहा था, अभी धीरे धीरे हो रहा है और वो भी आपने अच्छा किया, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद बाबा। कोटि कोटि धन्यवाद है। शुक्राना शुक्राना। संगत जी, वो जल प्रसाद और चंदन तिलक का महिमा है, उसका चमत्कार है। जहाँ संगत जी, मैं ये सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि जिसको जहाँ दर्द होता है, बहुत असह्य दर्द भी होगा, क्योंकि मेरा ये कमर का तो बस 10-12 सालों से चल रहा था। मैं गिर गई थी, तभी से नहीं बैठने होता था। संगत जी, मैं आपको बहुत खुशी के साथ कहती हूँ कि मैं धीरे धीरे, वो बाबा ने बोला ऐसा चंदन टीका में वो थोड़ा सा जल प्रसाद दिला कि वो मैं वो जगह पे लगाती थी और दोनों हथेलियों से हाथ घिसे 7 बार मंत्र जाप के उसका सेक करती, तो मुझे काफी 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 फर्क है। तो परमात्मा का ये जल प्रसाद और चंदन टीका एक अक्षर जड़ी बूटी है जो दुनिया में किधर भी नहीं है। वो परमात्मा ने हमें दी है और उसका कोई निःशुल्क है, कोई दाम नहीं, कोई पैसा नहीं, कहीं पे जाना नहीं। घर बैठे ये उपाय हम कर सकते हैं और घर बैठे ये अमृत तुल्य उपाय बाबा ने हमें दिया है, तो सभी ने ये करे और 100% अगर भाव से दिल से करोगे तो परमात्मा ये सब कुछ मिटा देते हैं, जो सब सुख दुख दर्द मिटा देते हैं, अपने शरीर के भी दुख दर्द मिटा देते हैं। ये मेरा अनुभव मैंने शेयर किया है, इसके लिए भी बाबा गुरु जी आपका कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि धन्यवाद है बाबा। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी ओम गुरुजी। नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। आनंदम आनंदम आनंदम। शुक्राना गुरुजी महाराज का कर उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, गुरु कृपा मुझ पर की और मैं गुरु जी के पास पहुंची। जब मैं अपने गुरु जी महाराज से बहुत 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 फ्रेगनेंस उन्होंने मुझे अपनी महसूस कराई। मैं अपने गुरु जी का जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। मेरी मम्मी आंटी की तरफ से भी शुक्राना, दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरी बेटी की हालत इस टाइम पे बहुत ख़राब है, इसलिए मैं अपने गुरु जी का बहुत दिनों से आज कम से कम मैंने दिवाली से पहले का शुक्राना किया है और आज काफ़ी टाइम हो चुका है मैं अपने गुरु जी का शुक्राना भी नहीं कर पाई हूँ। एक तो मुझे टाइम नहीं मिला और दिमाग में बहुत टेंशन रहती है। मेरे गुरु जी महाराज मुझे बहुत मैसेज देते हैं, शुक्राना कर शुक्राना कर शुक्राना कर बेटा, लेकिन मैं नहीं कर पाई। अपने गुरु जी महाराज से क्षमा चाहूँगी कि उन्होंने मेरी इस मुसीबत की घड़ी में मेरे कंधे पे हाथ रखा, मेरे बच्चों के ऊपर उन्होंने अपना हाथ रखा। लख 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 करोड़ों बारी शुक्राना 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 है। और मैं अपना शुक्राना सत्संग आज अंकल योलेरा आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की बेटी गुरु जी महाराज से क्षमा चाहूँगी। मेरे गुरु जी महाराज ने मुझे इतने मैसेज दिए, मैंने सारे इग्नोर किए और मैं गुरु जी महाराज आपसे बहुत बहुत क्षमा चाहूँगी कि मैंने आपका शुक्राना करने में बहुत लेट कर दिया। गुरु जी महाराज, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया कहना चाहूँगी, आपने मेरे घर में इतनी बरकत की और मेरे बच्चों के दोनों बच्चों के सर पे अपना हाथ रखा। बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया आपका। गुरु जी महाराज कहते हैं, संगत जी जो मैंने लिया है उसका शुक्राना तो कर, उसका शुक्र तो कर।
तो मैं अपने गुरु जी का शुक्र करना चाहूँगी, दिल से करना चाहूँगी। बाबा आपने मुझ में बहुत अपनी कृपा करी, तो मैंने सफलता का संगत जी पहला पड़ाव पार कर लिया है। गुरु जी महाराज ने मुझे आशीर्वाद दिया। मुबारक हो सफलता का पहला कदम। बहुत 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 शुक्राना गुरु जी आपका। ये सफलता का जो पहला पड़ाव मैंने पार किया है, पहला पड़ाव था और आपने ही मुझे ये करवाया है। मैंने जिंदगी में बहुत धक्के खाए, बहुत ठोकरें खाई और 1.5 साल में मैंने अपनी बहुत कठिन परीक्षाओं से मैं गुजरी और आप मेरे अंग संग रहे। मैंने क्या पार किया संगत जी और गुरु जी, आपने मेरा हाथ पकड़ के सारे काम कराए। अब सबक गुरबाणी तो अमृत बेला करते हैं जब हम, तो हम सफलता की पहली सीढ़ी पे चढ़ते हैं संगत जी। और ये मेरे गुरु जी महाराज ने असंभव भी संभव कर दिखाया। बहुत 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 शुक्राना है गुरु जी आपका। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत ज़्यादा शुक्राना है संगत जी। गुरु जी महाराज कहते तूने मेरा बहुत शुक्राना किया है, कर मेरे गुरु जी मुझ पर इतनी कृपा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपका। संगत परिवार पर भी ऐसे ही करना, जो अंकल जी आंटी जी हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, उन पर भी ऐसे ही अपना हाथ करना। कल मुझ पर कोई कृपा करना गुरु जी की दरबार मुझे बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी मैं अपने भाई की तरफ से भी शुक्राना 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 करना चाहूँगी गुरु जी का। मम्मी आंटी की तरफ से, दोनों बच्चों की तरफ से, बहन की तरफ से भी गुरु जी महाराज कहते हैं बेटा जब तू अम्बे पहला शुक्राना नहीं करेगी तो आगे कैसे बढ़ेगी। गुरु जी महाराज मेरा शुक्राना छूट गया था, मैं आपसे क्षमा चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी आपका, जो आप मुझे हर कदम पे इतना मुझे सीख देते हो, शिक्षा देते हो। बहुत बहुत शुक्राना बाबा आपका। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है संगत जी। मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। नमः शिवाय शिव जी सदा साईं, नमः शिवाय गुरु जी सदा साईं, नमः शिवाय शिव जी सदा साईं, नमः शिवाय गुरु जी सदा जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु पा। सबसे पहले मैं दिव्य मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा आज तारीख 28 अक्टूबर 2025, वार है मंगलवार, हनुमान बाबा जी का वार और समय है सुबह के 7:35 और मैं गुरपा की बेटी कल्पना तेलंगाना से बोल रही हूँ और अपने परमपिता परमात्मा गुरुजी महाराज के श्री चरणों में अपने अमृत वेला शुक्राना सत्संग की हाजिरी लगा रही हूँ। गुरुपा ये हाजिरी मेरी हाजिरी है। गुरुपा ये हाजिरी मेरे दोनों बच्चों की हाजिरी है। गुरुपा ये हाजिरी मेरे ससुराल में रह रहे मेरे हस्बैंड और मेरे मदर इन लॉ की हाजिरी है। गुरुपा ये हाजिरी मेरे मायके में रह रहे मेरी ब्रदर, उनकी
दोनों बच्चों और मेरी सिस्टर इन लॉ की हाजिरी है गुरुपा। गुरुपा, ये हाजिरी मेरी छोटी बहना, उसके हस्बैंड और उसकी गुड़िया की हाजिरी है गुरुपा आपके श्री चरणों में। गुरुपा, ये मेरे समस्त पितृ देवताओं की हाजिरी है गुरुपा आपके श्री चरणों में। गुरुपा, ये मेरे संपूर्ण परिवार के सदस्यों की हाजिरी है गुरुपा आपके श्री चरणों में। गुरुपा, मेरे समस्त परिवार के सदस्य आपके श्री चरणों में अपना शीश झुकाते हैं और अपने इस जन्म, पूर्व जन्म और जाने अनजाने में हुए हर गुनाह की माफी मांगते हैं गुरुपा। गुरुपा, मेरे समस्त परिवार के सदस्य की मति आप बने, उनके कर्म आप बने, उनकी वाणी आप बने, उनकी सोच आप बने, उनके कदम आपके अनुसार ही चलें, उनका संपूर्ण जीवन गुरुपा, मेरे परिवार के संपूर्ण सदस्यों के जीवन आपके अनुसार ही आप चलाएं गुरुपा। आपकी रजा में हम राजी हैं। पितृ देवताओं के भी जन्म जन्मांतर के गुनाहों की माफी दे हैं मेरे बख्शनहार, सभी के गुनाह बख्श दो, निवाह के चलाओ, सर्वत्र का भला करो गुरुपा। गुरुपा, संगत जी, गुरुपा ने अपनी बेटी को पिछले साल मई 2024 में खुद से जोड़ा यूट्यूब के माध्यम से। ऐसे माड़े समय में जब मैं मौत के कगार पे थी, गुरुपा ने अपनी बच्ची को मौत से बाहर निकाला, वरना आज मैं यहाँ इस सत्संग करने के योग्य भी नहीं होती। गुरुपा 7 जुलाई 2024 अपने जन्मदिन के दिवस से घर में प्रवेश किए और तब से गुरुपा घर के मुख्य सदस्य के रूप में विराजमान है। हमसे प्रेम करते हैं, हमको ले जाते हैं कार्यस्थल में, हमको घर के बाहर बच्चों के अंग संग ले बच्चों को भी लेकर जाते हैं, फिर घर लाते हैं, सदैव अंग संग रहते हैं। बहुत शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। गुरुपा बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। परसों रात जब मैं घर आई तो देखा कि एक छोटी वाइट कलर की तितली और एक बड़ी ब्लैक कलर की तितली वो सुबह से वहीं पर थी, परंतु वो छोटी तितली बाद में आई। फिर मैंने उनका जय गुरु जी करके उनको हाथ जोड़ा। पता नहीं कौन सा मेरा माड़ा कर्म था जिसके लिए वो आई है, परंतु वो ब्लेसिंग्स देकर चली गई। थैंक यू सो मच गुरुपा, इतना ब्लेस करने के लिए। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच।
गुरुपा दोनों तितलियां आपने इस रूप में ब्लेस किया मुझे। मेरे सारे कर्मों को आप किस रूप में काट रहे हो ये आप ही बेहतर जानते हो मेरे गुरुपा। आपने कहा कि अब तेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि तेरा पियो, तेरा महाशिव तेरे साथ है। सदैव तेरे अंग संग है। तुझे ब्लेसिंग्स, खुशी, तुझे ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ। अब तेरे बच्चों और तेरे जीवन से सारे नेगेटिविटी भस्म कर दी है मैंने। तुझे 7 खुशखबरी मैंने दी है। 777, 999, 333, 555 की ब्लेसिंग्स आपने दी है गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। गुरुपा आपने सचमुच ब्लेसिंग्स के रूप में कल बहुत बड़ा कार्य पूर्ण कराया गुरुपा। उसका मैं सत्संग जब पूर्ण होगा तब करूँगी गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। गुरुपा अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ और कल पुनः नवीन सत्संग के साथ पुनः हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरुपा इस सत्संग के दौरान अगर मुझसे कोई भी गलती हुई है संगत भाई बहन, गुरुपा मुझे माफ करें। कान पकड़कर हाथ जोड़कर आपसे माफी की कामना करती हूँ। मुझे माफ करें संगत भाई बहन। गुरुपा सभी संगत भाई बहन पर अपनी असीम मेहरबानाएं रखें। सबको गुड हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, गुड लक दें। अगर किसी भी संगत भाई बहन के अब्रॉड जाने की प्लानिंग है तो उसमें उनको अब्रॉड जाने के लिए रास्ते सुलभ कराएं। बहुत आराम से उनके अब्रॉड जाने के कार्य पूर्ण कराएं गुरुपा। सबको उनकी अरदासें, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें गुरुपा। गुरुपा जो संगत भाई बहन के कोई कोर्ट केसेस अगर पेंडिंग है तो उसमें भी उन्हें विजय हासिल कराएं, उनके फेवर में जजमेंट हो। अगर कोई मैट्रिमोनियल केसेस में सेपरेशन चाह रहा है तो जैसे संगत बहन की मर्जी हो, भाई बहन की मर्जी हो, उनके अनुसार ही उनके फेवर में जजमेंट कराएं गुरुपा। अगर वो रिजॉइन होने चाहते हैं तो उनको पुनः मिलाएं गुरुपा। गुरुपा अगर कोई संगत भाई बहन कोई क्रिमिनल केसेस में, फौजदारी के मामले में फंसे हैं तो उनको भी गुरुपा आप
उस परेशानी से, उस केस से बरी कराएं, उनको एक्विटल कराएं, बाइज्जत बरी कराएं गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा। गुरुपा सभी संगत भाई बहन के परिवार में खुशहाली प्रदान करें। सभी संगत भाई बहन के बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत करें, उनका कहना माने और गंदे नशे से और बुरी आदतों से, नाइट लाइफ से, रैश ड्राइविंग जैसे चीज़ों से दूर रहें। सब पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा। गुरुपा गुरु जी डिवाइन वर्ल्ड का ये प्यारा सा मंच है, लीना जी, राज भाई जी, इन पर भी आप अपनी असीम मेहर बनाए रखें। उनको गुड हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस ब्लेस करें। बहुत प्यारी सेवा वो प्रदान कर रहे हैं। हमारे सत्संग अति तुरंत अपलोड कर देते हैं। बहुत क्विक सर्विस है उनकी। थैंक यू सो मच डिवाइन सोल्स। थैंक यू सो मच लीना जी और राज भाई जी, इतनी क्विक और प्यारी सेवा प्रदान करने के लिए। गुरुपा की असीम मेहर सदैव आप पर बनी रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी संगत भाई बहन, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच पापा। लव यू, लव यू, लव यू पापा। शुक्राना, 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 अनंतम 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 शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरु। लव यू, लव यू, लव यू पापा फॉर एवरीथिंग। लव यू माय डिवाइन फादर।